Hello, Namaste. Myself Navratan Kumawat, and I am posted here as a principal in Star Academy School, Jorpura Jobner. Star Academy School is located on Nagore Kuchaman Mega Highway, nearby Jobner City. Let me show you our school. Please come. This is our advertisement van. Uh, Admissions open for the session 2024 and 25, and also RT admissions are also open for our school. You can fill your form by self, and you can take help from the schools anytime. And this is our building structure, uh, airy classrooms, approx 20 classrooms for our in our school. Conveyance facility is available in 30-kilometer radius in our Jobner city. This is our goddess Saraswati temple. Every student get blessings from here. Okay. I want to tell you about our school strength. There are approx 600 students in our school, and we run the school from classes nursery to class 8. We have qualified teachers for your children's, and we have a smart classroom for primary section. Also, we provide the self defense classes and judo classes on regular basis. And also, those students are interested in cultural activities, in musics. So these kinds of facilities are provided by the school on regular basis. Let me show you our classrooms. Hello, this is our pre-primary section, smart classrooms. You can see well furnished classrooms, blackboard with LEDs, decorated walls with cartoons. Alphabets is also printed on walls. This is our also a primary section smart classroom. You can see a well furnished classroom with LED and also decorated classes with the study materials. Now let me show you our projector room. Please come. The students get difficult topic on video basis. तो आपको महत्वपूर्ण बात क्या समझनी है? अगर उपसर्ग है, ठीक है ना, उपसर्ग सहित अगर है धातु, तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर आपका लगेगा यप, ठीक है। और अगर स्व की बात करें तो वहां पर उपसर्ग रहित, ठीक है ना, धातु होगी। कौन सी धातु होगी? उपसर्ग रहित। यही दोनों में अंतर है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए उदाहरणानि। यहां पर देखिए प्रकृति है, और यहां पर ये जो है ये आपके पास में उपसर्ग है, ध्यान रखना। You can see these our students are discussing about some topics. So let's we talk to our students. They tell about our school, the Star Academy School. Okay. Payal Kumaut, please come and tell something about our school. Okay. Namaste, my name is Payal Kumar. I am reading in class 8. I read in Star Academy School from nursery class. Star Academy School is the best school. Star Academy School is the best kids school in our area, where we get quality education from qualified teachers. Thank you. What is your school name? My school name is Star Academy School, Jorpura Jobner. Now I am calling some other students to tell about our school. Let's see. Shakshi, please come and tell us something about our school. Okay.
Thank you. Namaste. My name is Sakshi Kumaut. I read in class 5th. I want to tell you the Star Academy School in best kids school for all development of a child. Thank you. बेटा आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? I am studying in Star Academy School, Jorpura, Jamner from last 7 years. थैंक यू। Thank you. नमस्ते। नमस्ते सर। आपके स्कूल में आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज़ दक्षिता यादव। वी आर गेटिंग ए क्वालिटी एजुकेशन, judo karate classes and self defense classes on regular education. नमस्ते। नमस्ते। आपको स्टार एकेडमी के प्रांगण में यहाँ पर जो क्या क्या प्रस्तुति दी जाती है? I also getting same facilities. I am interested dance classes, so school provides us dance classes facilities. Thank you. Now let's we talk to our director sir, Mr. Nanuram Kumawat. Please come. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ यानी से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए हैं राजधानी के जोमनेर नगरी में, जो जवाला मैया नगरी के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज ये शिक्षा नगरी के नाम से भी पहचानी जाती है, जहाँ पर यहाँ के जोरपुरा जोमनेर में एक स्टार एकेडमी स्कूल चलाते हैं डायरेक्टर साहब नानूराम जी कुमावत। तो यहाँ 600 से अबव बच्चे हो गए, तो इसमें क्या कारण है कि बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं? नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं जो विद्यालय से जुड़े हुए सभी अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विद्यालय के ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चों को लगातार यहाँ भेज रहे हैं। और हम जो एजुकेशन का जो सिस्टम है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कर रखे हैं। जैसे जैसे उनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अपने बच्चों में जो भी कमियाँ होती है उनको हम अच्छी तरह से सुनते हैं और उसके अनुसार हम उनका लगातार सॉल्यूशन करते रहते हैं। साथ ही बच्चों को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जैसे जूडो, कराटे और बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए हमने क्लासेज आयोजित कर रखी है। साथ ही जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 3 साल से लेकर 6 साल या 7 साल है, उनके लिए हमने कुछ स्पेशल क्लासरूम्स को डेवलप कर रखा है, जिसमें बच्चों के लिए कंफर्टेबल फर्नीचर है। LED हमने स्मार्ट LED लगा रखी है, जिसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, उससे क्या होता है कि बच्चा जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट होता है और अच्छा उसका जुड़ाव हो जाता है स्कूल से, टीचर से, तो किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं आती है। और एक सर, आजकल छोटे बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप बच्चों को किस प्रकार से गाइड करते हैं? सर मैं इसके लिए सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, लालच करते हैं थोड़ा बहुत कि बच्चा जैसे रो रहा है या फिर और भी कई चीज़ें होती है घर के अंदर कि उसको चुप कराना है, या फिर हमारा जो भी घर का कामकाज होता है उसको करना है, तो हम उस लालच को देखते हुए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे उस मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। फिर डेली लाइफ में उसका जो मोबाइल का यूज़ है वो बढ़ जाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप घर के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें बोले बच्चे को ध्यान रखने के लिए मोबाइल ना दे उस बच्चे को आप। और सर, एक आजकल जैसे हर माँ बाप मान लो शिक्षा दिलवाता है बच्चों को, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और अच्छी संगत का ध्यान नहीं रख पाता है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे स्कूल में जब प्रेयर असेंबली टाइम होता है उस दौरान हम सभी बच्चों को संस्कार के बारे में जानकारी देते हैं, मोबाइल से दूर रहने के बारे में, जो मोबाइल के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की कोशिश करते हैं कि मोबाइल से वो दूर रहे। और संस्कारों की हम बात करते हैं तो बच्चों को हमें अच्छे संस्कार उनको कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से बताते हैं कि उनको किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से दूसरों से बोलना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स कोई भी उनके घर पे मेहमान आते हैं तो उनसे किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, उनके सामने सही तरीके से रहना चाहिए, उनसे नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें असेंबली टाइम में बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ से लगभग कितना एक एरिया कवर कर लेते हो आप?
हमारे स्कूल से लगभग हम आसपास का 25 से 30 किलोमीटर का एरिया भी हम कवर कर रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि हमें इस एरिया को बढ़ाते रहे, क्योंकि जो अभिभावक है वो काफ़ी हमसे सेटिस्फाई है और उन्हें अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। चूँकि हमने एक स्कूल का जो लेवल बना रखा है वो नर्सरी से 8 तक का बना रखा है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो किड्स है, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। चूँकि देखा जाता है कि जहाँ बोर्ड क्लासेज होती है 10 से 12 तक चलता है, वहाँ पे उन स्कूलों में 10 से 12 के जो बच्चे होते हैं रिजल्ट बनाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सभी बोर्ड क्लासेज है, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो 4th हो, चाहे वो 8th क्लास हो, सभी पे हम बराबर ध्यान देके उनकी अच्छी एजुकेशन उन्हें देने का प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी है और पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। और बच्चों को मान लो जैसे कई बच्चे शिक्षा के अलावा संगीत या खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो इसके बारे में हमें जो बच्चे खेल में जैसे मानते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स का भी यहाँ कर रखे हैं, जैसे जूडो कराटे का हमें यहाँ डेली क्लासेस करवाते हैं, प्रेयर टाइम में भी होती है। उसके बाद में हमने स्पोर्ट्स एकेडमी का इवनिंग टाइम में बैच चलता है, उसमें हमारे जो कराटे कोच होते हैं वो सिखाने आते हैं डेली। साथ ही जो बच्चे काफ़ी अच्छे खेलने में होते हैं उनको हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी खिलाने के लिए लेके जाते हैं और कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है और नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। धन्यवाद सर जो आपने ये जानकारी दी।